جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہاں سے پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین انتخابی میدان میں آئی ہے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس پردیش میں ایک متبادل سیاسی پلیٹ فارم نہیں تھا، آج ایک متبادل اور آلٹرنیٹ سیاسی پلیٹ فارم مجلس اتحاد المسلمین فراہم کر رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنا ووٹ بی جے پی کے خلاف دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے، یہاں سے بی جے پی کی حکومت کو شکست دیجیے، بی جے پی کے پارٹی کو ضرور ہرائیے، مگر یاد رکھیے اگر آپ کانگریس کے ساتھ جو جھارکھنڈ مکتی مورچہ کا الائنس ہے، اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ووٹ دوبارہ اسی فرقہ پرست طاقتوں کے حق میں ووٹ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ مہاراشٹر میں کانگریس نے شیو سینا کے ساتھ اتحاد کر کے وہاں کے جتنے لوگوں نے، خاص طور سے مسلم اقلیت نے اور ہمارے سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے بھائی اور بہنوں نے جو ووٹ کیا، مہاراشٹر میں کانگریس پارٹی نے شیو سینا جیسی ایک فرقہ پرست پارٹی کے ساتھ مل کر مہاراشٹر میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ صحیح معنوں میں سیکولرزم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نہ بی جے پی کا ساتھ دیجیے، نہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ یا پھر کانگریس پارٹی کا ساتھ دیجیے۔ ہمارے امیدوار ڈاکٹر امن خان صاحب ہیں، میرا صبح میں وہاں پر پروگرام تھا، مگر ہمارے سیاسی دشمنوں کی سازش کی وجہ سے ہم وہاں پر نہیں جا سکے، مگر میں ہمارے سیاسی دشمنوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اور آپ کی دعاؤں سے ڈاکٹر امن خان جب کامیاب ہوں گے تو میں ضرور وہاں پر آؤں گا اور آپ تمام کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ اس ودھان سبھا سے یہاں سے آپ اشرفی چندرونشی صاحب ہمارے امیدوار ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ یہ جھارکھنڈ کا ضرور ایک اسمبلی الیکشن ہے، مگر یہ ہندوستان کے اس راستے کو طے کرے گا کہ یہ ملک کس راستے پر جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتنی بڑی ریاست ہے، اتنا بڑا یہاں پر بجٹ ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 14% مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور صرف ان کے تحفظ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہاں کی بی جے پی کی سرکار نے صرف 102 کروڑ روپے مختص کیے۔ آپ بتائیے یہ آخر یہ کب تک ناانصافی چلتے رہے گی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں جس ریاست تلنگانہ سے آتا ہوں وہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی یہی 14% کے برابر ہے، مگر وہاں پر مسلم اقلیت اور تمام اقلیتوں کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 1000 کروڑ کا سالانہ بجٹ وہاں پر منظور ہوتا ہے۔ بتائیے آپ، یہاں پر اتنی بڑی آبادی اقلیتوں کی ہے، مگر آپ کی ہماری پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اس بی جے پی کی سرکار ہو یا ماضی کی سرکاروں نے ہمارا صرف استحصال کیا۔ اگر یہاں سے اس اسمبلی کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کامیاب ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اقلیتیں ہوں، آدیواسی ہوں، کمزور طبقات کے لوگوں کے لیے مجلس ایک بے باک آواز بن کر ابھرے گی۔ آج مہاراشٹر کے اس تمام نتیجوں کے بعد جو وہاں پر جو دھوکہ دیا گیا، اس کے بعد میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ جو کل تک مجھ پر الزام لگاتے تھے کہ اسد الدین اویسی الیکشن لڑتا ہے ووٹ کاٹنے کے لیے، اسد الدین اویسی پر الزام لگانے والوں یہ بتاؤ کہ مہاراشٹر میں کیسے کانگریس شیو سینا کی تائید کر رہی ہے، کس بنیاد پر
झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस झारखंड की आवाम के सामने जाकर अपने वोट की भीख मांग सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में तुमने हमको ये कहकर वोट लिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत को बनने नहीं देंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि याद रखिए, अब कांग्रेस के दिल फरेब बातें हो या फिर मोदी के वो झूठे ख्वाब हो, इन पर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पार्टी नाकाम साबित हो चुकी है। आज बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, मगर अमित शाह झारखंड में आकर कहती है कि हम बहुत बड़ी मंदिर को तामीर करेंगे। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, ये आदिवासियों का रियासत है, जुडिशियल प्रमोशन में क्यों एक आदिवासी यहाँ पर उसमें कामयाब होता है? अगर रिजर्वेशन आदिवासियों को है तो उनको उनका हिस्सा उसमें क्यों नहीं मिलता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आदिवासियों की रियासत, यहाँ पर 10,000 के करीब लोगों के ऊपर हिंदुस्तान से गद्दारी का सेडेशन का इल्जाम लगा दिया गया। आप बताइए, कुंती जिले में 10,000 के करीब आदिवासियों पर इतना बड़ा मुकदमा लगा दिया गया, इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। आप नागपुर का टेनेंसी एक्ट को उसको खत्म करके कमजोर करके रख दिया गया। बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है। आप जब इनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने इस रियासत में गरीबी के खात्मे के लिए क्या किया, तुमने नौजवानों के रोजगार के लिए क्या किया, तो कहेंगे अपने कश्मीर से 370 का खात्मा कर दिया और हम मंदिर बनाने जा रहे हैं। अरे आप हुकूमत इसलिए तो नहीं कर रहे थे कि सिर्फ जज्बाती बातें कर कर लोगों में फिरकावारा मुनाफरत को फैलाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान में बीजेपी नाकाम साबित हो रही है और मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं आपके दिलों में जो छुपे हुए जज्बात हैं, जो आपकी आंखों में एक उम्मीद है, हमारा मकसद एक ही है कि समय इलेक्शन में लड़ने का, कि आपके ख्वाबों को पूरा किया जाए। मैं आपसे वादा करने आया हूं, मैं झारखंड की आवाम से वादा करने आया हूं कि हमको हमेशा सियासी तौर पर दबाया गया, माशी तौर पर हमारा इस्तेसाल किया गया और हमारी समाजी और तहजीबी तमाम चीजों को खत्म करके रख दिया गया। अगर आप सियासी तौर पर अपने आप को दबाने से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सियासत में, झारखंड की सियासत में आपका एक मुकाम हो, अगर आप चाहते हैं कि तरक्की के मौके तालीम के मैदान में हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों को मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहजीब, आपकी जबान और आपकी सकाफत की हिफाजत हो, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का साथ दीजिए। यहाँ से शफीक मुंशी साहब और डॉक्टर एमएम खान को कामयाब करिए। और याद रखिए, ये बीजेपी, जेएमएम और ये कांग्रेस का इत्तेहाद, ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा देती आए हैं और बीजेपी बार बार कहती है कि हमने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। अरे तुम याद रखो, तुम कौन सा भी कानून लाकर जो चाहे करना है कर लो, मगर मैं अपनी जिंदगी को गुजारूंगा उस रास्ते पर गुजारूंगा जिसका हक हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे दिया है। और हिंदुस्तान का संविधान हमसे कहता है कि हम अपने मजहब पर चले, अपनी तहजीब पर चले, अपनी सकाफत पर फख्र करें और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत करते रहेंगे। रहा सवाल अमित शाह का, अगर झारखंड के इलेक्शन में आकर अमित शाह ने मंदिर की बात की, तो फिर क्या मैं क्या मस्जिद की बात नहीं कर सकता हूं? बताइए आप। मंदिर की बात करते हैं। अरे 5 साल में आपकी बीजेपी के रघुवर दास की सरकार ने झारखंड की आवाम से धोखा दिया है, इनके लिए कुछ काम नहीं किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आज आपको होश के नाखून लेकर सोचना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि हर तरीके से नाइंसाफियों का हमको सामना करना पड़ रहा है, हर तरीके से हमको कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है। अब तो बात हमारी शनाख्त पर आ गई, अब तो बात हमारी हर चीज पर आ चुकी है। इसलिए इस पुराशुभ दौर में ये जरूरी है कि आपकी एक बेबाक सियासी आवाज हो। सेकुलरिज्म की कामयाबी उस वक्त होगी जब यहाँ से आप अशरफी रघुवंशी को कामयाब कर कर दिखाएंगे, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। सेकुलरिज्म की कामयाबी हरगिज नहीं हो सकती कि तुमने बीजेपी से नाराज होकर
कांग्रेस और जेएमएम के अपने हक में अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया। ये तमाम के तमाम सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। तारीख जानती है, आप जानते हैं कि यही जेएमएम ने एक वक्त बीजेपी का भी साथ किया था। आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में उन तमाम लोगों को धोखा देकर शिवसेना को तायीद कर रही है। कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद वही महाराष्ट्र और मुंबई की सड़कों पर क्या क्या नजारे आपको हमको देखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है कि 93 जनवरी में किस तरह मुंबई की सड़कों पर हमारी बहनों को बेवा होना पड़ा, हमारे बच्चों को यतीम होना पड़ा। ये असदुद्दीन ओवैसी नहीं कह रहा है, बल्कि जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में मेरी तबाही की दास्तान लिखी गई थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने आज बुला दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि याद रखो, इस मुल्क की जमहूरियत में उसी को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। इस मुल्क की जमहूरियत में उसी से इंसाफ किया जाता है। इस मुल्क की जमहूरियत में उसी को उसका हक मिलता है जिसके पास सियासी ताकत होगी। तुम्हारे पास अगर सियासी ताकत होगी तो तुमसे इंसाफ मिलेगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे एमएलए जीत कर जाएगा तो तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। अगर तुम्हारे पास आवाज होगी तो उस आवाज को सुना जाएगा। मगर याद रखो नौजवानों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मैं बुजुर्गों से भीख मांग कर कह रहा हूं कि 70 साल की नाइंसाफी के खात्मे करने का वक्त आ गया है। आपने इन तमाम पार्टियों का साथ दिया, मगर बताओ, कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो, कभी अपनी झोपड़ी में झांक कर देखो, कभी अपने टूटे घरों में झांक कर देखो, कभी अपने बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम होते हुए देखो। बताओ, इसका राज क्या है? इसका राज ये की है कि तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं है। मैं आज यहाँ पर झारखंड को आया हूँ तो तुम्हारी आवाज को पैदा करने के लिए आया हूं, तुम्हारी ताकत को दिखाने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे इत्तेहाद की भीख मांग रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाइए और अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मजहब के खिलाफ न थी ना रहेगी। आज आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में दलित भाई हमारे कई वहां पर कारपोरेटर मुंतखब हुए, इलेक्शन भी लड़े। खैर बहरहाल मुझे और जाना है, वक्त कम है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अपना एक वोट हमारे रघुवंशी साहब और एमएम खान साहब के हक में वोट डालकर इनको अपना नुमाइंदा बनाकर इनको झारखंड के असेंबली में भिजाइए। क्योंकि अब झारखंड के असेंबली में जब मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहां की खामोशी टूटेगी। वहां पर हमारे शेर जाकर गरीब और मजलूम आवाम की एक आवाज बनेंगे और हक और इंसाफ का मुतालबा करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।